So this is the basic type of study design. We will go one by one for all these type. So study designs are basically of two types, qualitative type and the quantitative type of study design. Quantitative type of study further divided into the observational study and the experimental study. Observational study means पाउन करने, देख के करना, and experimental study means कर के देखना. This is basic difference. Okay. Observational study further divided into two types, descriptive study and the analytical study. In descriptive study, there is no comparative group, and in analytical study there is a comparison between two variables. This is again basic difference in these two types of the observational study, descriptive and the analytical. Descriptive study is further divided into the case report, case series, cross-sectional study and the longitudinal study, which are case report, case series, cross-sectional and the longitudinal study. And the analytical study further divided into the cohort study, case control study and the cross-sectional analytical study. In descriptive study also there is a cross-sectional, and in analytical study also there is a cross-sectional analytical study. But what we say that in descriptive study there is a no group of comparison, but in case of analytical study there is a comparison group is there. Okay. And third one is the experimental study, means in which we confirm the generated hypothesis. Such trials are called as the experimental studies. For example, clinical trial is considered as a gold standard for the experimental studies. Clinical trial, field trial and the community trial. नियर अबाउट जो वैक्सीनेशन के ट्रायल्स होते हैं वो फील्ड या कम्युनिटी ट्रायल के बेसिस में हम लोग जो है नॉर्मली करते हैं. ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइंस? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. क्वालिटी में क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, परसेप्शंस है, उसका एनालिसिस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर, विद द हेल्प ऑफ डीप इंटरव्यू. ओके, दैट इज क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन फर्दर डिवाइडेड इनटू द ऑब्जर्वेशनल एंड द एक्सपेरिमेंटल. ऑब्जर्वेशनल फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिस्क्रिप्टिव एंड द एनालिटिकल. Descriptive, no comparison. Analytical, there is comparison between two groups. Descriptive studies are hypothesis generating studies in which we can further divide the study into case report, case series, cross-sectional study and the longitudinal study. Analytical study, we use the two groups for the comparison. These are the hypothesis testing study. Cohort study, case control study and the cross-sectional analytical study are the types of the analytical study. And experimental study, in which we confirm the hypothesis. Clinical trial, RCTs, randomized controlled clinical trial, we can also say field trial and the community trial. Okay, so these are the types of the study designs. First we will go in detail for the descriptive studies. डिस्क्रिप्टिव स्टडी में एक ही ग्रुप रहता है, हैविंग ओनली वन ग्रुप, देयर इज नो कंपैरिजन ग्रुप. ओके, सो देयर इज नो नीड ऑफ हाइपोथेसिस बिकॉज दिस स्टडीज आर हाइपोथेसिस जनरेटिंग स्टडीज. एटीट्यूड सर्वे, परसेप्शन, साइकोलॉजिकल जो स्टडीज़ है, प्रीवैलेंस रेट, मीन, मीडियन, बिहेवियर स्टडी, इवेल्यूटिंग न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडीज़. डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडीज़ में प्रकार देखे थे हमने केस रिपोर्ट, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल. व्हाट इज मीन बाय केस रिपोर्ट? सिंगल केस स्टडी है, उसे हम केस रिपोर्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं. बट सिमिलर डिसीज़ के ऐसे दो से ज़्यादा केसेस हमें मिलते हैं तो वी कैन से दैट द केस सीरीज. ओके, व्हाट इज मीन बाय क्रॉस सेक्शनल? जब भी हमें डिसीज़ का प्रीवैलेंस रेट निकालना रहता है, वी यूज़ द क्रॉस सेक्शनल फॉर दैट स्टडी. व्हाट इज मीन बाय प्रीवैलेंस रेट? द टोटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू केसेस, पूरे और क्या बोलते पुराने और नए केसेस जितने भी है टुगेदर वी कैन कॉल इट एज अ प्रीवैलेंस रेट. And what is mean by incidence rate? Only the new cases of the disease is called as the incidence rate. So cross-sectional study used to calculate the prevalence rate, while the longitudinal study is used to calculate the incidence rate of the disease. Cross-sectional में perform only once, एक ही टाइम हम क्या बोलते हैं स्नैपशॉट ऑब्जर्वेशन लेके स्टडी पूरा करते हैं. बट इन लॉन्जिट्यूडनल स्टडी वी कैन परफॉर्म मोर देन वन और ओवर अ पीरियड ऑफ स्टडी. हम 2 बार 3 बार 4 बार जैसे हमें चाहिए उस प्रकार से उसके ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल एंड द लॉन्जिट्यूडनल. सो केस रिपोर्ट, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल, दीज आर द टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज. नेक्स्ट
इन डिटेल वी विल गो फॉर द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, स्नैपशॉट स्टडी, एक ही बार स्टडी का ऑब्जर्वेशन, जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लेके उसको छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड एज अ स्नैपशॉट, सिंगल टाइम. ओके, इट इज़ नॉट प्रोस्पेक्टिव, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, आगे भी नहीं जाते पीछे भी नहीं जाते, हेंस वी कॉल्ड इट एज अ नॉट प्रोस्पेक्टिव, नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स क्रॉस सेक्शन, इसीलिए इस स्टडी का नाम क्रॉस सेक्शनल यानी स्टडी टाइप पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द स्मोकिंग टुडे इन 2018 या 20 बोला आज का, 40% लोग स्मोकिंग करते थे, बट उसमें से लंग कैंसर 1% लोगों को ही हुआ. एक ही बार हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया और नोट डाउन कर लिया, बट जब इसका फॉलोअप लेते हैं, बहुत बार इसको स्टडी करते हैं, तो मे बी ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बेसिस पे किया है, दैट वुड बी रॉन्ग. ओके, so in this study no relative risk, no odds ratio, we can calculate only the prevalence of the study. Okay, this is about the cross sectional study. This is the diagrammatic representation of the cross sectional study. देखो पॉपुलेशन है, उसमें से हमने सैंपल लिया है और सैंपल को एक ही टाइम में ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन डन एट 1.1 टाइम, क्या है क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ओके, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी. नेक्स्ट पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल लिया, बट वी ऑब्जर्व मल्टीपल टाइम टू दैट सब्जेक्ट. 4 ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, सैंपल एक ही है उसके हमने 4 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, दैट वी कॉल्ड एज ए लॉन्जिट्यूडनल स्टडी. ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर द एनालिटिकल स्टडी. एनालिटिकल स्टडी में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो देयर इज, वी कैन सी द डिफरेंस और कंपैरिजन, बिकॉज देयर आर 2 ग्रुप, कंपैरेटिव ग्रुप होता है और इसलिए हम उसमें डिफरेंस या कंपैरिजन देख सकते हैं. जो पहले की स्टडी है डिस्क्रिप्टिव स्टडी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर दिस एनालिटिकल स्टडी. Hypothesis generated from the descriptive study we can test it by the analytical study. Here we can test the association between the exposure that we can call as a risk factor and the outcome that we can call as the disease. Means cause to effect जो रिलेशन है, एसोसिएशन है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो इसमें हम लोगों ने देखे थे एनालिटिकल स्टडी में कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडी. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर द कोहॉर्ट स्टडी. कोहॉर्ट यानी क्या होता है कि जो मार्चिंग करने वाला ग्रुप होता है उसे कोहॉर्ट करते हैं, वो हमेशा आगे जाता है ना, लेफ्ट राइट करते हुए. सो दिस इज द फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी. कॉज टू इफेक्ट, हेतु टू व्याधि उसे बोल सकते हैं, कॉज टू डिसीज, एक्सपोजर टू आउटकम. एंड दिस स्टडी स्टार्ट बिफोर द ऑकरेंस ऑफ डिसीज शुरू होने के पहले ही ये स्टडी हमको शुरू करना होता है. जैसे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, इज द बेस्ट एंड फेमस एग्जाम्पल टू अंडरस्टूड द कोहॉर्ट स्टडी एंड द केस कंट्रोल स्टडी. स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है. सो स्मोकिंग इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट? लंग कैंसर इज द इफेक्ट और डिसीज और द आउटकम. ओके, तो स्मोकिंग से कैंसर हो रहा है ये देखने के लिए हम जो स्टडी डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, दैट वी विल कॉल एज ए कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन. सो हियर इज द schematic representation of that cohort study. See how the reference population is there. We choose the study population from that reference population. We further divide that population into exposed group and the non-exposed group या unexposed group. We take follow for long term period and then we observe affected and non-affected. Okay, means इतने सारे स्मोकिंग के केसेस है, पेशेंट्स है, उसमें से हमने स्टडी पॉपुलेशन सिलेक्ट किया, उन स्मोकिंग कर रहे हैं उसको हमने 2 ग्रुप में किया है और एक दूसरा ग्रुप है जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है. ओके, अनएक्सपोज ग्रुप है. फिर स्मोकिंग करने वालों में से किसको कैंसर हुआ है और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं उसमें से किसको कैंसर हुआ है और नहीं हुआ. ये स्टडी का इन शॉर्ट में जो है वो क्या है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है. इसके अपोजिट होता है नेक्स्ट जो स्टडी डिज़ाइन हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द केस कंट्रोल स्टडी. रिवर्स में आना है, जैसे कोहॉर्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है वैसे केस कंट्रोल रिवर्स डायरेक्शन में बैक में वापस आएगा. सो इफेक्ट टू कॉज मीन्स डिसीज टू कॉज,
outcome to exposure. And very important is that the study start after the occurrence of the disease. Disease होने के बाद हम ये study शुरू करते हैं. That is the case control study. Okay. सिमिलर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अपना कौन सा, लंग कैंसर और स्मोकिंग का. स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है ये कोहॉर्ट स्टडी. बट अभी लंग कैंसर के पेशेंट है अपने पास, इन्होंने स्मोकिंग किया था क्या? ओके. डिसीज टू कॉज हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, रेट्रोस्पेक्टिव डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज द केस कंट्रोल स्टडी. सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी. टाइम बाउंडेड, टाइम मैंने जो दिया है, एक्सपोजर ऑकर्स हियर, डिसीज आउटकम ऑकर्स हियर एंड स्टडी स्टार्ट्स हियर. यहाँ पे ज़रूरी है कि जो पेशेंट हम ले रहे हैं वो डिसीज कंडीशन में होने चाहिए. केसेस ऑलरेडी होती है, इसीलिए इसे केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं. ओके. देखो, स्टडी बेस, केसेस और कंट्रोल दो ग्रुप लिए हमने सैम्पल. ओके. उसमें से एक्सपोज अनएक्सपोज, एक्सपोज अनएक्सपोज ये स्टडी करके हम टिपिकली, यानी जिन लोगों में लंग कैंसर हुआ है उन्होंने सही में सब ने ही क्या स्मोकिंग किया था क्या, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टडी करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द केस कंट्रोल स्टडी. क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडी इज द थर्ड टाइप ऑफ द एनालिटिकल स्टडी. इसमें क्या है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डिसीज एंड द एब्सेंस ऑफ द डिसीज. स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में प्रेजेंट डिसीज है या नहीं है. ओके. सो सिंपली वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल स्टडी. एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडी. इट इज़ फेयरली क्विक स्टडी, शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरी होती है एज़ कम्पेयर टू द कोहॉर्ट स्टडी. जैसे कोहॉर्ट स्टडी में हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट किया, स्मोकिंग कर रहे लोग, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 साल के लिए 20 साल के लिए कोई कैंसर डेवलप हो रहा है उनको, है ना. इतना ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है. सो इन दिस क्रॉस सेक्शनल स्टडी वी नीड द कंपेरेटिव शॉर्ट पीरियड. वेरी इजी टू परफॉर्म, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. ओके. इट yields the prevalence of disease and the risk factor. It is a good step to carry out the cohort study. What are the disadvantages of the cross-sectional study? It cannot be measure the incidence. Prevalence rate measure कर रही है इसलिए cannot be measure the incidence rate. It only shows the association and not the causation. Association बता रहे but exactly cause क्या है, study cannot be determined. Okay. कोई इवेंट है, इवेंट का क्या फ्लो है, कैसे डायरेक्शन में हो रही, इट कुड नॉट बी कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल स्टडी. दिस स्टडी इज नॉट सुटेबल फॉर द डिसीजेस विच इज रेयर. रेयर डिसीज के लिए स्टडी सुटेबल नहीं है. ओके. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल स्टडी. नेक्स्ट वी विल सी द एक्सपेरिमेंटल स्टडी. एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे इंटरवेंशन करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या आउटकम में अपने चेंज आया है. सो वी अगेन नीड हियर द टू ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप. स्टडी ग्रुप में वी कैन गिव द न्यू ड्रग, एनी न्यू इंटरवेंशन, कुछ भी हो सकता है. एंड व्हाट द कंट्रोल ग्रुप, इन कंट्रोल ग्रुप वी गिव द सम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल. इफ and if there is no standard treatment available, we can use the placebo instead of that drug in the control group. Okay. नीचे एग्जाम्पल दिया है, इफेक्ट ऑफ गोदंती एंड त्रिभुवन कीर्ति ऑन द बॉडी टेम्परेचर इन डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स. तो हमें यहाँ पे दो ग्रुप मिल रहे हैं, एक ग्रुप को हम गोदंती दे रहे हैं, एक ग्रुप को त्रिभुवन कीर्ति रस दे रहे हैं. सो गोदंती जो है अपना वो स्टडी ग्रुप का ड्रग है और त्रिभुवन कीर्ति है वो कंट्रोल ग्रुप का स्टैंडर्ड ड्रग है. इसलिए तो दो ग्रुप में हम करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. नेक्स्ट द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक. सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के लिए फिनर्स क्राइटेरिया यूज करते हैं. FINERS. व्हाट इज मीन बाय F? फिजिबिलिटी. व्हाट इज मीन बाय इंटरेस्ट? I मीन्स इंटरेस्ट. N novelty. E ethicality. R relevance and S for the socially useful. Feasibility, interest, novelty, ethicality, relevance, socially useful. This all characteristics include in the Finner's criteria which is used to select the topic for our research. Okay. Next we will see the one by one in detail. What is meant by feasible? Feasible means it is likely to produce the best outcome. 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 It
if we want to define if the research is feasible for us, then ask some questions yourself. Technically, is it possible? Is it affordable in time? ओके जैसे फॉर एग्जांपल पीजी में ड्यूरेशन कम रहता है और हम स्मोकिंग से लंग कैंसर करना चाहते हैं स्टडी, इज इट अफोर्डेबल इन टाइम? टेक्निकली पॉसिबल है? नहीं है. मैन पावर, कोई स्टडी होती है जिसके लिए ग्रुप में पूरा मैन पावर लगता है ना, स्टाफ, असिस्टेंट, तो ये मैन पावर अपने लिए है या नहीं है. मनी अगेन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, ड्रग्स है, उसके लिए मनी रिक्वायरमेंट होती है. सैम्पल साइज, अवेलेबिलिटी ऑफ सैम्पल साइज. जो पॉपुलेशन पे हम स्टडी कर रहे हैं सही में वो डिसीज़ अपने यहाँ पे होता है, ओके, उसकी अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है. इक्विपमेंट्स, उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सही में इंडिया में बनते भी नहीं होंगे तो हम ऐसा स्टडी नहीं कर सकते. सो ये सब क्राइटेरिया हमको देखने हैं एंड वी हैव टू डिसाइड इज इट अ फुल्ली फिजिबल स्टडी फॉर अस और द पार्शली और द नॉट फिजिबल फॉर अस. और जब पूरा फिजिबिलिटी अपने लिए अपनी तरफ होती है, so we can choose that topic for our research. In bracket TTMMC, TTMMC is code given to learn the feasibility. T for technically possible. Second T is for time, affordable in time. M for manpower. Second M is for money. S for sample size and E for the equipment. Technically, time, manpower, money, sample size and the equipments. TTMMC. फिजिबिलिटी हम इसे याद रख सकते हैं. इंटरेस्ट सबको पता है, टॉपिक शुड बी इंटरेस्टेड इन व्यू ऑफ रिसर्च टीम. एक भी सिंगल भी रिसर्चर रहा या टीम भी रही तो सबके लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए. अदरवाइज सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, सबका अलग अलग मत वहाँ पे बनता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है फिर. ओके, सम प्रॉब्लम्स जैसे बायस और फ्रस्ट्रेशन अगर टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं आया तो हो सकता है रिसर्चर को. इट शुड बी नॉवेल. नॉवेल्टी इज द वन ऑफ क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द टॉपिक. व्हाट इज मीन बाय नॉवेल? न्यू टॉपिक ऑफ ऑल एस्पेक्ट. बराबर है, कोई हम दूसरे का कॉपी नहीं कर रहे, पुराना टॉपिक है उसको नहीं ले रहे. सो इट इज़ टोटली न्यू टॉपिक इन ऑल डायरेक्शन. इट मस्ट बी रिड्यूस द कॉस्ट और डोज. अगर कोई हम ऐसा भी टॉपिक ले रहे हैं जिसका ड्रग का कॉस्टिंग पहले बहुत ज़्यादा जाता था, अभी वो कम हो रहा है, दैट वो भी स्टडी हम लोग नॉवेल करके ले सकते हैं. सेफ्टी, अगर कोई न्यू रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, रिप्लिकेबल है, ओके, कुछ प्रीवियस फाइंडिंग है उसके ऊपर और हमें कुछ फाइंडिंग एक्सटेंड्स करने हैं तो वो टॉपिक हम नॉवेल कंसिडर करेंगे. या कुछ नए ही फाइंडिंग उसमें हमें मिले, प्रोवाइड सम न्यू फाइंडिंग्स रिगार्डिंग एनी रिसर्च टॉपिक. इस प्रकार से न्यू होना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. हम ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो जग में ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होता है. सो टॉपिक शुड बी नॉवेल बट नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एथिकलिटी, सबको पता है एथिकलिटी मीन्स क्या होता है. हर एक इंस्टीट्यूशन में क्या है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है जो रिसर्च को परमिट करती है वाके. ओके, सो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एथिक्स कमेटी? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, टू नो ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन सब्जेक्ट जो पार्टिसिपेंट होते हैं स्टडी, उनके अधिकार वो बचा के रखती है. सो IEC permission is very important. If we are going to do in a large scale, then we need the proof of safety. For example, animal study, toxicological study we can do. और प्लासिबो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी जनरली नहीं यूज़ करते हैं. ओके, एनी ट्रायल विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट इज़ अनइथिकल. इन्फॉर्म कंसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई एडिशनल बर्डन है ट्रायल में अगर पेशेंट के ऊपर, इट इज़ नॉट अलाउड. compensation should be given in case of any hazard or a death. Okay, and ICMR guidelines are useful to carry out the research on a human subject. ICMR के गाइडलाइन में जनरल स्पेसिफिक पूरे गाइडलाइन दिए कि रिसर्च कैसा होना चाहिए. रिलीवेंस, इज द टॉपिक इज रिलेवेंट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, इज इट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ. आज का जो पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम है उससे रिलेवेंट है ये. नहीं तो हम देख रहे हैं येलो फीवर इन इंडिया, येलो फीवर के केसेस होते ही नहीं और येलो फीवर का स्टडी हम यहाँ कर रहे हैं. इट इज़ टोटली इरिलेवेंट. ओके, स्टडी अगेंस्ट द नेशनल पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं. सो दैट
कुड नॉट बी द अगेन रिलेवेंट टॉपिक। जैसे हम लोग की बोलते हैं आज का जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, सेव गर्ल्स, और हम कर रहे हैं पूर्ण समन विधि पे स्टडी, सो इट कुड बी अगेंस्ट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नॉवेल है फिर भी हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। ओके, यस स्टैंड्स फॉर सोशली यूजफुल, सेविंग लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशली यूजफुल है कि नहीं ये हमें देखना है, इसमें हम बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ओके, इवन फ्रेंडली के एनवायरनमेंट के साथ भी फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली जिसे बोल सकते हैं, और कुछ सोशल नीड्स है उसको कमी को पूरी कर सकती है, तो अपना रिसर्च टॉपिक है सोशली यूजफुल होना चाहिए। इन लास्ट वी विल रिवाइज द होल टॉपिक इन वेरी शॉर्ट पीरियड। एक सिंगल स्लाइड आपको याद रखना है उसके लिए जो दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, डी फॉर दोस्त डिस्ट्रॉय फिनर्स मिस्टेक, ये अपना पूरा कोड है। उसमें से डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च। इन डेफिनेशन व्हाट वी हैव टू रिमेंबर वर्ड सिस्टमैटिक, scientific and systematic search for knowledge on a particular topic or issue is called as the research. Or secondly definition we can say that the systemized effort to gain the new knowledge is nothing but the definition of research. Okay, what are the features of the good research? इसके लिए हमने क्या कोड बनाया था, ट्रिप गो। फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च के लिए जो कोड बनाया था वो है ट्रिप गो। टी फॉर टेस्टेबिलिटी, आर फॉर रिपीटेबिलिटी, आई फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल, इंटरवल का आई हमने ट्रिप में लिया है, पी फॉर प्रिसीजन, जी फॉर जनरलाइजेबिलिटी, एंड ओ फॉर द ऑब्जेक्टिविटी। ओके, सेकंड इज द फीचर फॉर द गुड रिसर्च, इसका कोड है ट्रिप गो। डी हो गया डेफिनेशन, उसके बाद आया अपना फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च, ट्रिप गो। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च? idea get converted into the research problem get converted into the research question, and then ultimately it turns into the research hypothesis. Okay, so next we will see the what is meant by idea. Spark in mind, clinical observation or thinking, accidental और वो क्या observational idea हो सकती है। Next, what are the criteria for the good research question? VP, yes, V for the वेरिएबल, P फॉर द पॉपुलेशन, एंड S फॉर द स्टडी डिज़ाइन। ओके, ये हुआ कौन सा रिसर्च क्वेश्चन का क्राइटेरिया। एंड व्हाट इज द अगेन वी कैन यूज द पिकॉट क्राइटेरिया फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड जो स्टडी जिसमें ग्रुप्स होते हैं और ऑथेंटिक मानी जाती है उसमें पिकॉट क्राइटेरिया यूज करते हैं। सो दैट इज द P फॉर पॉपुलेशन, I फॉर द इंटरवेंशन, C फॉर द कंपैरिजन, O फॉर द आउटकम, एंड T फॉर द टाइम बाउंडेड। ओके, VP सिंग एंड पिकॉट, ये उसके दोनों कोड है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन से टाइप होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन के कौन से टाइप होते हैं? वो पहला है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, सेकंड है जो एसोसिएशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, और थर्ड होता है कंपैरेटिव टाइप, D&C, DAC, डिस्क्रिप्टिव, एसोसिएशन एंड द कंपैरेटिव टाइप ऑफ क्या रिसर्च क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के प्रकार होते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ओके, null hypothesis and the research hypothesis, also called as the alternative hypothesis. Simple, complex, directional, non-directional, and third one is the null hypothesis and the alternative hypothesis, also called as the research hypothesis. इसको हमने कोड क्या बनाना है, सिंपल डायरेक्शन फॉर द रिसर्च, सिंपल डायरेक्शन फॉर द रिसर्च, ऐसे तीन प्रकार इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन से प्रकार होते हैं, इसके लिए BOPAC, BOPQ, B फॉर द बेसिक, इसके अपोजिट अप्लाई, बेसिक अप्लाइड, O फॉर द ऑब्जर्वेशनल, इसके अपोजिट एक्सपेरिमेंटल, P फॉर द प्राइमरी एंड S फॉर द सेकेंडरी, एंड लास्ट जो है OPAC Q के लिए क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। कौन से चार प्रकार, बेसिक, अप्लाइड, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, फिर देन कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, और लास्ट में कौन सा है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है। नेक्स्ट, वी हैव सीन द स्टडी डिज़ाइन, जो मेन दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ओके, क्वांटिटेटिव को अगेन हम ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल में यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशनल के प्रकार होते हैं डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल,
डिस्क्रिप्टिव में हम लोग केस स्टडी, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल स्टडी देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल में, एनालिटिकल में हम लोग केस कंट्रोल, कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडी देखते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी आते हैं जिसमें हम RCTs, रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल, देन फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल, ये ट्रायल देखते हैं। ओके, दीज आर द स्टडी डिज़ाइंस. What is the Finner's criteria? You must know now the what is the Finner's criteria. F for feasibility, I for the interesting, then Finner's N stand for novelty, E for ethicality, R for relevance, and last में S for socially useful. Okay, so in this way, this last slide is very important and we can use to learn whole the full lecture in the relation with this one slide. Okay, with the help of this mnemonics. Thank you very much.